For country living, the topic is taken from NCRT today, and we will discuss the few things about the GOC. And it's a chapter is some basic concepts or some basic principle and techniques. Okay, I'm sharing the slides. So the chapter is some basic principles and techniques. क्लियर? तो इसमें हम इसको बोल सकते हैं कि टॉपिक किसका है, कि टॉपिक है जीओसी का. जीओसी मतलब जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, which is very basic part. So I am sharing the notes of NCRT here to understand the basic concepts. So let us go there. You all join. It's taking a long time to open. Let's wait. If you have NCRT before you or any other book, you please open that. Yes. So the chapter is organic chemistry, and you have taken the screenshots of the NCRT today to make understand these topics. So today's main agenda is to make you aware what is organic chemistry, number one, okay, and how to approach organic chemistry in a particular way. Okay, so first of all, if you revise the basic concepts of class 10th, where you discuss that carbon is the main element in the organic chemistry, and carbon being called king of elements. King of elements. क्लियर? तो भाई इसको किंग ऑफ एलिमेंट्स इसलिए कहा गया क्योंकि हर एस्पेक्ट में, लिविंग में, नॉन लिविंग में ये प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है? और इवन ये एग्जिस्ट करता कहाँ पे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. तो ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर विद कार्बन. क्लियर? तो भाई इस कार्बन की एक प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं कैटिनेशन, जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है. और कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी टू फॉर्म long chains of carbon, and we know that catenation is self-linking property of carbon. It can link with other carbons. Number two, about carbon, we know that it is tetravalent.
or it is having tetravalency. That means if we take carbon, atomic number 6, it is 2 and 4. So carbon has 4 electrons in outermost shell, and it can bind with the 4 groups. So it is said to be tetravalent. It can form 4 bonds. And number 3 is that carbon can form multiple bond. ठीक है, मतलब you know that carbon can form carbon-carbon single bond where each atom is tetravalent. देखिए यहाँ पे 1 2 3 4th bond, 1 2 3 4th bond. ठीक है, तो here carbon-carbon single covalent bond. Similarly, carbon-carbon can form double bond, and in double bond you know that one is sigma bond, other is pi bond. Carbon-carbon can form triple bond, and in triple bond there are 2 pi bond and 1 sigma bond, and the sites which are extreme bonded sites, they are also sigma bonds. So this is the structure of the, what we can say, carbon-carbon triple bond. अब ये 3 पॉइंट को देख के अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सिंपल सी ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, जिसमें डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई? या तो आपके हाइड्रोकार्बन, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, प्लस डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव कौन से भाई? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव. मतलब उनके साथ में हो सकता ऑक्सीजन हमारे पास हो सकता हमारे पास वहां पे नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, हेलोजन हो. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो CH4 क्या भी हमारे पास मीथेन है, और ये क्या है? ये आपका CH4 इज मीथेन, और ये क्या है? ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है. ठीक है, सपोज मैं एक H को रिप्लेस करता हूं किससे? हमारे पास Cl से. इसमें हेलोजन आ गया, तो ये बन गया हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, और इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव. सपोज इसमें एक H हमने रिमूव किया, एक OH डाल दिया, ये बन गया CH3OH. ये बन गया ऑक्सीजन कंटेनिंग डेरिवेटिव ऑफ, वी कैन से, हाइड्रोकार्बन. तो ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है, जिसमें हैलाइड है, जिसमें हाइड्रोक्साइड है. ठीक है, इस तरह से डेरिवेटिव बनेंगे. अगर मान लो इसी में हम एक H रिमूव करके इसमें ऐड करें NH2 ग्रुप, तो ये बनेगा CH3NH2, जिसको बोलते हैं अमाइन बेसिकली. तो ये भी डेरिवेटिव है, बिकॉज में क्या है? इसमें नाइट्रोजन आया हुआ है यहाँ पे. सो दिस वे वी कैन से ये डेरिवेटिव्स हैं. तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के साथ में नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, सल्फर हो, फास्फोरस हो, ये कुछ एलिमेंट है, नॉन मेटल्स हो, उन सबको बोलेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन. बट अब कंट्रेरी बताएं तो CO2 is not a organic compound, although it consists of carbon and oxygen, but it's not a organic compound. Similarly, there are few other compounds which are not said to be, for example, carbon monoxide is a not organic compound. They are both inorganic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो वो प्रॉपर्टी डिस्कस करने में यहाँ पे ये नहीं आते दोनों, तो इसलिए ये मत सोचना कि कार्बन हर कोई हो सकता है. अब बात करते हैं, तो जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं जो हम स्टडी करते हैं कार्बन के साथ में, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और उनमें एलिमेंट्स होते हैं जो मैंने मेंशन किए, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. पहली बात इतनी समझी आपने. अब दूसरी बात भी आपने ये पढ़ा था कि बिगिनिंग में हम देखते हैं तो एक थ्योरी आई थी जिसको बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी. ठीक है,
ये वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? ये वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कस करती थी कि भी हमारे पास अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो बनेगा नेचर से। नेचर से मतलब वो बनेगा नेचर से बाय मींस ऑफ द नेचुरल फोर्सेस। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि भाई सन रोटेट करता है, ठीक है, तो अगर सन रोटेट करता है लेट्स से, ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द सन। ओके, तो सेम प्रोसेस में हम ये बोल सकते हैं या अर्थ रोटेट करती है अराउंड द सन, तो हम अर्थ को मतलब चेंज नहीं कर सकते, या सन रोटेट करता प्लैनेट्स के थ्रू तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो नेचुरल फोर्सेस हैं, ठीक है। वैसे उन्होंने कहा था कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो नेचुरल फोर्सेस बनते हैं। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती है कि भाई हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, फॉर दैट देयर इज सम नेचुरल फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल, क्लियर। एंड दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जिलस। इस थ्योरी को दिया था किसने? बर्जिलस ने, क्लियर। बट हुआ क्या, 1828 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था वोलर, और वोलर ने फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया, कहां पे? लैब में। तो इस सिंथेसिस ने 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। उसने बताया कि नहीं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैन आल्सो, so we can neglect that there is no mention of any special type of forces, supernatural forces which are meant for formation of organic compound. So what he does, he prepared the very first compound, and the very first compound is urea. तो पहला कंपाउंड बनता है यूरिया। अब यूरिया जो है अगर उसको हम देखें तो इट इज NH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड NH2, ये भाई यूरिया हमारे पास है। और यूरिया को कहां से बनाया? यूरिया को बनाया उसने अमोनियम साइनेट से, which is NH4CnO। दिस इज अमोनियम साइनेट। और अमोनियम साइनेट क्या भी बेसिकली हमारे पास ये आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पहली बार कोई नेचुरल नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमें सिंथेटिक कंपाउंड से हमने सिंथेसाइज किया लैब में यूरिया। और यूरिया क्या भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। So this way the first discovery is being there which is done by the Wohler। अब वोलर ही नहीं था, वोलर के बाद एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। इट इज आल्सो कॉल्ड विनेगर, बताया कोई ना बहुत बार ये। तो ये भी बनाया भाई। तो इसको बनाया किसने भाई? इसको बनाया 1845 में एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कोल्ब, ठीक है। देखो भाई बारिश हो गई यहां से, इसको भी बनाया। अब उसके बाद बर्थोलेट ने 1856 में बनाया मीथेन। ये भी इसने लैब में प्रिपेयर किया, मीथेन बाय द मींस CH4। So in this way the number of the compounds are formed from time to time in the laboratory, and the term that vital force theory is fully rejected। ऐसी कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, जो खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाती है, क्योंकि ये लैब में भी बन सकते हैं। तो भाई यूरिया बनाया वोलर ने, उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया कोल्ब ने, उसके बाद मीथेन बनाया किसने भाई? बर्थोलेट ने। ईयर कब से स्टार्ट हुआ? 1828 से 1845 अप्रॉक्स, एंड दिस इज 1856। So this way we get number of the organic compound from the inorganic one।
तो देखो भाई यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि हमने इसको बनाया था अमोनियम साइनेट से, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये दोनों कहाँ से बने, तो भाई ये बने थे कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना था, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मीथेन बना था, ठीक है। तो अब आगे करते हैं भाई। तो सबसे पहले हमें देखो भाई, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। तो एनसीईआरटी पढ़ी जाती है इसी तरह से, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी क्रिस्प, बट उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी का मेंशन उन्होंने उतना किया था, इन्हें बताया था कि वाइटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट आपको अगर ये पता चले कि यहाँ पे वाइटल मतलब फोर्स क्या होता है तो थोड़ा सा उसका एलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इतना ही है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई। तो देखो नेक्स्ट बात ये करें कि अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेवलपमेंट हो गई। तो जब डेवलपमेंट होगी तो आज के टाइम में मैंने आपको पहले भी ये स्टेटमेंट की है बहुत बार कि हम पर डे के हिसाब से 4000 तक कंपाउंड हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं, वो भी कौन से, न्यू, ठीक है। तो अब तो कोई फोर्स है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट, तो अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मॉडर्न अगर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के साथ स्टडी किया जाए तो हम कहीं ना कहीं इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग का जिक्र करते हैं। एंड व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग? एक ऐसी बॉन्डिंग जहां पे म्यूचुअल या इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, ठीक है। म्यूचुअल इक्वल मतलब क्या? अगर मान लो दो एटम जुड़ रहे हैं ए और बी, तो ये भी एक शेयर कर रहा है, ये भी एक शेयर कर रहा है, तब जाके ये हमारे पास बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड ए और बी। तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है हमारे पास इक्वल शेयरिंग, क्योंकि हर एक एटम इक्वल शेयर, ऐसा नहीं है कि ए और बी बॉन्ड मारा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 दे रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इक्वल शेयरिंग होगी हमारे पास यहाँ पे। तो ये भी आपको टर्म बता दूं। अच्छा भाई, कार्बन की मैंने बात की थी, तो कार्बन की बात पहले भी की थी हमने, 10th में भी की थी अगर याद होगा। तो भाई सबसे पहले कार्बन की शेप कंपाउंड्स की कैसी होती है, तो भाई सबसे बताऊं आपको मैं। देखो भाई हमने ये डिस्कस किया कि कार्बन कैन एग्जिस्ट एज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कैन एग्जिस्ट एज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन कैन एग्जिस्ट एज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब मुझे आंसर दो भाई क्या क्या शेप हो सकती है। Yes, what are shapes of the carbon covalent compounds or carbon compounds containing covalent bonds? So this is sp3 hybridized. This is sp2 hybridized. This is sp hybridized. So shape is first की क्या आएगी भाई? Tetrahedral. Are you listening? Second की shape triangular, planar. और थर्ड की शेप sp hybridized मतलब linear, ठीक है। थोड़ा एंगल रिपीट करा देता हूं आपको, 109 डिग्री 5 मिनट, 120 डिग्री, और ये डायगोनली होता है तो 180 डिग्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। लास्ट का है 180 डिग्री। क्लियर? तो these are the shapes of the different, we can say, carbon compounds. And when we take only the concept of the bonding pairs of electrons without taking any lone pair, यहाँ पे टोटल और आपको पता है कि बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स ही बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी हो गया हमारे पास यहाँ तक कंसेप्ट। अब हमें इसमें मिलता है कि भाई कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4, तो इस कार्बन इज सब टेट्रावैलेंट। तो ड्यू टू टेट्रावैलेंसी and catenation, carbon shows multiple bond, single bond, sigma and pi bond, 2 pi and 1 sigma bond. So this way come, so this is the shape of the carbon that we discuss. Okay, तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द पाई बॉन्ड। तो भाई आपको पता है कि पाई बॉन्ड के बारे में अगर कुछ बताएं तो व्हाट इज पाई बॉन्ड? एक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप, ठीक है, it is called pi bond. If there are two p orbitals which are placed on the perpendicular axis and parallel to each other, then they are held together by a bond and overlap
sidewise above the plane and below the plane to form one single pi bond. आप ये मत सोचना यहाँ पे दो बॉन्ड से यहाँ पे एक ही है, ठीक है. If we have the shapes of two bonds, तो we can show here कि अगर ये दो ऑर्बिटल हैं जिनको परपेंडिकुलर एक्सिस पे प्लेस किया है, एक ये हो गया बाय द वे, एक दूसरा बता रहा हूँ यहाँ पे इसी के साथ में, ये भी कोई p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड है. अब यहाँ पे दो p ऑर्बिटल, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो देखिएगा एक पाई बॉन्ड बना रेड वाला, दूसरा पाई बॉन्ड बना, ये मत सोचना यहाँ पे चार बॉन्ड्स हैं, ये ब्लू वाला, ठीक है. तो मतलब ये हो गया आपके दो पाई बॉन्ड यहाँ पे कंपाउंड में. तो इस तरह से ये शेप बन सकती है यहाँ पे. तो दिस इज द केस ऑफ द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. देयर आर टू पाई बॉन्ड्स, ठीक है. तो इस तरह से बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो ये हमेशा क्या होता है यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैप होता है, एक बात. दूसरा जो हमने ऑर्बिटल यहाँ पे खड़े किए वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं, और जब ओवरलैपिंग होती है तो पैरेलल पी ऑर्बिटल जो है वो म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं, ठीक है. और इसमें आपको पता है कि भाई पीपी ओवरलैप में, ठीक है, साइड वाइज पे ई पाई बॉन्ड बनता है. और अगर ओवरलैप हेड टू हेड हो तो उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है. जैसे एक एस ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है पी ऑर्बिटल से, तो क्या होगा भाई हमारे पास, ये बनेगा आपका hello. So sorry for interruption. Basically there was urgent something. तो भाई आप बात करें थे हम यहाँ पे, so all of you meet here. Yes. कितनी हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अब बात करते हैं भाई यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, तो भाई अब हम बात करते हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड की. तो मैंने कहा भाई पाई बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बनता है, कैसे बनता है भाई, एक तो एस एस ओवरलैप में बनता है, एक एस पी ओवरलैप में बनता है. पाई बॉन्ड बनता है कहाँ पे, पीपी ओवरलैप में, और उसके भी कुछ रूल्स होते हैं. यहाँ पे होता है ये हेड टू हेड ओवरलैप, और ये होता है क्या भाई हमारे पास, दिस इज कॉल्ड साइड वाइज ओवरलैप, एस एस इज पेयर साइड, ओके. तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड. दूसरी बात यहाँ पे करते हुए, किसी कंपाउंड में अगर आपको दिखाने पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो मुझे ये कंपाउंड बताओ भाई, ये कंपाउंड हमारे पास है, सपोज सी, इस तरह से कंपाउंड है, लाइक दिस वन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन कार्बन एंड देन डबल बॉन्ड कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड कार्बन. तो इस कंपाउंड में हमारे कितने बॉन्ड है, बता सकते हो भाई? Sir, please repeat the question.